You cracked the cat, got some calls, not from the old AMs, the blackies, maybe not even from an IM. And now you're wondering, should you go for it or not? Will a tier 3 college land you at your dream company? Fancy metrics, NIRF, placements, CTCs. And I've seen many people from tier 3 colleges make it to the top companies. This video isn't a hype, it's the truth. You need to know before you commit your 2 years, 25 lakhs. Let's dive deep. Let's assume that there are two scenarios. First one is you're on a job is like 12 LPA, ठीक है, और अगले 2 साल तक you'll be earning 12 plus 12. Now we are talking about in hand CTC, not the CTC, in hand salary, ठीक है. तो 12 plus 12 24. और अगर मैं अभी जॉब छोड़ देता हूँ और मैं MBA करने चला जाता हूँ और MBA की फीस का जो लोन है, लेट्स से इट्स 25 lakhs. सो ऑलरेडी आई एम लूजिंग 24 lakhs, दैट्स 12 plus 12, एंड अब मेरे पे 20-25 लाख का लोन भी है, ठीक है. तो अब मेरी MBA की कॉस्टिंग आफ्टर MBA इट्स लाइक आई एम ऑलरेडी इन लॉस काइंड ऑफ अ थ्योरी इन 48, 49, 50 लाख, व्हाटएवर द नंबर इज. तो अब अगर मैं MBA के बाद जॉब लेता हूं जो कि अब 15-16 लाख की, तो वॉज इट वर्थ इट इन एनी काइंड ऑफ सिनेरियो? नहीं ना. तो वो नहीं, उसकी जरूरत नहीं उस पॉइंट पे. अब सेकंड सिनेरियो लेते हैं. लेट्स से यू आर फ्रेशर और यू आर अर्निंग समवेयर अराउंड 6-7 लाख. अब इस बंदे को अगर 15-16 लाख की सैलरी मिलेगी विद इन 2 years, दैट्स अ बिग जंप. समझ रहे हो? जंप एज इफ कि वो 6 लाख पे था, लेट्स से उसको 30% हाइक मिलेगा अगर बाय चांस, ठीक है, तो 1.8 लाख ऐड हुआ उसकी सैलरी में, तो इट्स हार्डली 7.8 लाख समथिंग, एंड नाउ ही इज अर्निंग 15 लाख. तो उसके लिए वर्थ इट होगी ये सर MBA, ठीक है. तो let me be very honest with you, this is like a real life kind of an experience I've seen many people who can't hold a proper conversation one-to-one in an interview, who can't express their thought in GD. In the classroom, they can't do class participation, or they can't speak looking at the screen for a presentation. So the gap in communication, the confidence, clarity of the thoughts, these were the things that held them back, not the college name. So even in a decent B school, there are people who were not able to land on a decent role, or they lost their opportunity. And for that, I would say, even before blaming the college, the system, everything, ask yourself, were you prepared for the opportunity? Ask yourself, how many interviews did you give? Was it 5, 10, 15? See, in any B school, there is not a single person who hasn't given an interview. ऐसा नहीं है कि CV shortlist नहीं हो पा रहा, इंटरव्यू दे ही नहीं पा रहा. There are many a times that people are giving again and again and again interview, and they don't know what was the thing that was holding them back, and they were not able to uplift themselves, uplift their skill. So that was the one thing that held them back. इस चीज़ को explain करने के लिए ना एक simple theory है. Don't ever lose the hunger to be the best. जब तुम कैट प्रिपेयर कर रहे थे तब भी 2-2.5 लाख बंदा था, तुमने कैट दिया, इंटरव्यू हुआ, करते करते तुम्हारी शॉर्टलिस्ट क्लियर हुई, मेरिट लिस्ट व्हाटएवर, तुम एक कॉलेज में पहुंचे. सो देयर वाज अ कंपटीशन जिसको तुम पूरा पार करके पहुंचे हो वहां तक. अब वहां पे जो तुम्हारे साथ बाकी लोग हैं, लेट इट बी द नंबर बी 200, 100, 50 और लेट्स से 500, 600, व्हाटएवर द नंबर इज, वहां पे सबके सब लोग वही हैं जो कंपटीशन से लड़ना जानते हैं, ठीक है. अब वहां पे तुम अगर CV खाली लेके चले जाओगे ना, स्पेशली फॉर द फ्रेशर्स, तो बहुत दिक्कत होने वाली. तुम्हें एग्जाम्पलिफाई बहुत दिक्कत होने वाली है. लेट्स से देयर इज अ पर्सन जिसका CV केस कंपटीशन से भरा है इन सेंस कि लेट्स से 2 केस कंपटीशन उसने जीते हैं. लेट्स से वो कोई नेशनल फाइनलिस्ट रहा है. लेट्स से ही इज गुड इन स्पोर्ट्स. लेट्स से ही हैज डन सम ओलंपियाड. लेट्स से दैट he has done some extracurricular activity जो बहुत ही भयंकर थी. Let's say he is having an internship in let's say JP Morgan, any big kind of a company, और उधर तुम्हारा CV है जो बिल्कुल ब्लैंक है. It might be a chance कि आपका CV 999 है but ब्लैंक है, and it might be a chance कि उसका CV 777 है but filled है.
कंपनी स्टिल प्रेफरेंस उसको दे देगी। कंपनी के लिए सीवी इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर टू एनालाइज यू। तो कंपनी अगर तुम्हें एनालाइज कर रही है कि तुमने 999 किया है क्लासेस में पढ़ते हुए, बट यू आर नॉट टेकिंग पार्ट इन एनीथिंग, एंड उस बंदे ने अपनी प्रोफाइल को पूरा बिल्ड किया है बहुत चीज़ों को, और तब उसका सीवी इतना फेल हुआ है, तो ऑब्वियसली ही विल गेट प्रेफरेंस। सीवी बिल्ड कर लो। सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है फ्रेशर्स के साथ। वर्केक्स वालों के लिए यार, अगर तुम 3-4 साल किसी एक चीज़ में चले जाओगे ना, लेट्स से यू आर इन आई एम मैकेनिकल इंजीनियर, लेट्स से मेरा ऑपरेशंस में 3 साल का वर्क एक्स है या 4 साल का वर्क एक्स है, तो नेचुरल थॉट होगा कि भाई इसको ऑपरेशन की बहुत नॉलेज है, ठीक है। अब इस बंदे को अगर मैं बोलूंगा सेल्स कर ले, तो ये नहीं करना चाहेगा। ही वोंट बी कंफर्टेबल इनफ टू डू अ सेल। इसको बोल दूंगा कोल्ड कॉलिंग कर ले, नहीं कर सकता वो आदमी। तो सीवी लॉक्ड होते हैं। सो उसके लिए यू हैव टू बिल्ड सीवी इन सर्टेन डायरेक्शन। सो आप मार्केटिंग में जाना चाहते हो तो मार्केटिंग रिलेटेड सीवी बनाओ, दैट विल हेल्प। उससे पहले नहीं हो पाएगा। आज ब्लैकीज को बाकी आम से कंपैरिजन कर दूं ना, तो कंपैरिजन सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। एक कॉलेज है जो कि बहुत टाइम से इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, उसका अलुमिनाई स्टेटस बढ़िया है, मतलब अलुमिनाई एक स्ट्रॉन्ग होल्ड में है, ठीक है, और उनके लोग बड़े बड़ी कंपनीज में बड़ी बड़ी पोजीशंस पे हैं, तो दैट्स अ बिग नेटवर्क, बिग थिंग, ठीक है, जायंट काइंड ऑफ अ थिंग। और उसको अगर मैं कंपेयर करूंगा ना न्यू आईएम से या नॉट इवन आईएम, छोटे और कॉलेजेस से, तो वो कंपैरिजन सही नहीं बैठता। तुम जिस कॉलेज में पहुंच चुके हो ना, बी ग्रेटफुल अबाउट इट, ठीक है। यू हैव वर्कड रियली हार्ड, यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ दैट यू आर देयर, एंड यू कुड हैव डन बेटर, यू कुड हैव बीन अ गुड कॉलेज। तो ये तो भाई चलता रहेगा एंडलेस। मैं खुद बोलता हूँ मेरे और अच्छे आया तो मैं भी अहमदाबाद में बैठा होता, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी दैट आई गॉट फ्रॉम एन आईएम अमृतसर। मैं अपने कॉलेज में से अकेला आदमी उस कंपनी में, लिंक्डइन पे चेक कर लेना, ठीक है। तो देयर इज ए थिंग कि यू शुड नॉट कंपेयर योरसेल्फ ऊपर, अपने से ऊपर, ठीक है। वो हमेशा नेगेटिव थॉट ही देगा, वो कभी तुम्हें ऑप्टिमिस्टिक लेवल में जाके मोटिवेशन नहीं देने वाला, ठीक है। तो बी बेटर एट इट कि तुम जहां पे हो वहां पे अच्छा परफॉर्म कर लो, rather देन कि कॉन्स्टेंटली तुम वो नेगेटिव सेंस में जा रहे हो, वो बेटर नहीं है, वो बुरा होगा। डोंट बी मिसगाइडेड बाय द एनआरएफ रैंकिंग्स, प्लीज डोंट बी। अभी रिसेंटली लिस्ट आई है, मैंने लिस्ट देखी है, एंड क्या ही बोलूं भाई। तो एनआरएफ रैंकिंग ना क्रेजी मैट्रिक्स है, ठीक है, इस पर मत जाना। तो अभी रिसेंटली लिस्ट आउट हुई है, उस लिस्ट को भी इवेलुएट करेंगे अपन थोड़ा सा। तो बिफोर गोइंग इनटू जंपिंग इनटू दैट, एनआरएफ रैंकिंग में ना 5 मैट्रिक्स होते हैं टोटल। पहला टीएलआर, that is like your teaching, your learning resources kind of a thing. Second is your research as well as professional PhDs kind of a thing. तुम्हारे कॉलेज में वो है कि नहीं, ठीक है। Then there is a graduation outcome, कि तुम्हारे कॉलेज में लोग आए, ग्रेजुएट है और उनको जॉब मिली, ठीक है। फोर्थ वन इज योर आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, कि तुम्हारा जेंडर डाइवर्सिटी कैसा है, या हाउ एक्सक्लूसिवली योर कॉलेज इज लाइक फोकसिंग ऑन डाइवर्सिटी काइंड ऑफ अ थिंग। और लास्ट है परसेप्शन कॉलेज का क्या है। तो इन 5 मैट्रिक्स में ना कुछ परसेंटेज डिवाइडेड होती हैं, उन सबको क्लब करके एक नंबर बनता है, उनसे बनती है एनआरएफ रैंकिंग, ठीक है। अब एनआरएफ रैंकिंग पे ना लिस्ट पे चलते हैं। अब ये है अपनी प्यारी एनआरएफ रैंकिंग, ठीक है। अब ना मैं इसको देख ही रहा था, नीचे चलते हैं, ठीक है, चलो। तो अभी देखो ये कैसे है कि अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता एबीसी होता था, कलकत्ता को नीचे इन्होंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कहाँ मैंने एक चीज़ देखी। हाँ ये देखो, अमृता विश्वविद्यापीठम, ठीक है। टीएलआर 69, आरपीसी 47, ये तुम्हारा लर्निंग वाला, और ये प्रोग्राम्स का, ये आउटकम का, ये परसेप्शंस वगैरह इनके, ये वो सारा, और आउटरीच वगैरह इनकी, ठीक है। और इनसे नीचे घूम रहे हैं तुम्हारे, लेट्स से कोई अच्छा कॉलेज उठाते हैं, शिलोंग देखो कहाँ घूम रहा है भाई, ठीक है। तो ये इसका टीएलआर 69 है, इसका भी 69 कर रखा है इन्होंने, आरपीसी 47, इसका 28 है। चलो ओवरऑल मतलब ये नीचे घूम रहा है, इससे इसका रैंक 38 है, इसका कितना है 26। शिलोंग के बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत तो नहीं है ना मेरे को, शिलोंग के बारे में तो सब जानते हैं। अब इस कॉलेज का मैंने ना थोड़ा ये खोला, ये देखो, ये अपन चलते हैं यहाँ पे क्या लिखा है यहाँ पे,
एम्बुलेंस शोइंग रिजल्ट ऑफ एवरेज पैकेज अप्रोक्सीमेटली 8.32, हाईएस्ट 21.90। मे भी ये गलत हो, अपन चलते हैं थोड़ा और आगे, इनकी रिपोर्ट्स देख लेते हैं। रिपोर्ट्स हैं इनकी ये रही, ये देखो एवरेज 11, टॉप 100 स्टूडेंट 11.26, नहीं एवरेज सैलरी ऑफ टॉप 20% स्टूडेंट इज 11.85 है। देख रहे हो तुम? अब शिलोंग की भी दिखाऊं क्या? आई एम शिलोंग, लेट्स गो देयर। चलो जी, ये है इनकी फाइनल ग्रेड, ये तो ऐसा ही भी है, नहीं फाइनल प्लेसमेंट, हाँ क्या लिखा है? टॉप 10% 41, टॉप 20 का 38 पॉइंट समथिंग, इसका कितना चल रहा था तब? 11। कंपैरिजन है कोई सेंस का? और ये कहाँ घूम रहा है? 26 पे। कैन यू थिंक अबाउट इट? अब एमबीए करने जाना तो मैं एनआरएफ रैंकिंग बोलोगे, हमारा तो एनआरएफ रैंकिंग इधर घूम रहा है। तो एनआरएफ रैंकिंग तो बिल्कुल ही भाई, ये तो खत्म रैंकिंग है, इस पे मत जाया करो, इस पे जाने का कोई सेंस भी नहीं बनता, ठीक है? तो ट्राई टू अवॉइड इट। तो यार देखो, गोइंग इनटू बी स्कूल इज नॉट ए शॉर्टकट, तुम जानते हो इस चीज को, तुमने कंपटीशन दिया, तुम जानते हो इस चीज को। बट अगर तुम कॉलेज के नेम से ही बैक कर रहे हो ना अपना करियर, तुम ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे। वी आर थिंकिंग यू आर फ्रॉम एन IIM, तो भाई कैलकुलेशन करो, तुम्हारे IIM से 200-300 लोग हैं, किसी और कॉलेज से लेट से 500-600 हैं, एवरेज लेट से 700-800 बन गई, 21 IIM हो चुके हैं अब तो, ठीक है? तो लमसम एवरेज के हिसाब से लेट से 10,000 लोग बन रहे हैं, या 12-13 हज़ार हुए, तो 10-12 हज़ार लोग, ठीक है, मार्केट में पहुंच रहे हैं IIM के ब्रांड के साथ। डू यू थिंक इट्स इजी इन एनी काइंड ऑफ वे? डू यू रियली थिंक इट्स वेरी इजी? देखो, ये थॉट अपने दिमाग से अगर तुम बहुत पहले निकाल चुके हो या नहीं निकाला तो अब निकाल दो, कंपटीशन कभी कम नहीं होगा। इट वॉज ऑलवेज देयर, इट विल ऑलवेज बी देयर, इसका कुछ नहीं किया जा सकता, ये है तो है, बस खत्म है इस चीज़ का। हाँ, तो ये वीडियो इज मोस्टली अबाउट रियलिटी चेक काइंड ऑफ ए थिंग। सो बिफोर यू गोइंग इनटू अ कॉलेज देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, ठीक है, जिस पे हमने बात करी है। तो इन सब फैक्टर्स को इंक्लूड कर लेना, तब डिसाइड करना कि जाना कि नहीं जाना। और हमारा ना एक्चुअली ऐसा होता है कि लेट्स से IIM अहमदाबाद है, उसका एवरेज CTC कितना है बहुत लोगों को पता होगा, ठीक है? लेट्स से 30-32 चल रहा है, मैनी पीपल नो दैट। तो जब मेरे को लेट्स से IIM अहमदाबाद से ऑफर आ गया, ठीक है, सो मेरा माइंडसेट पता क्या है कि एटलीस्ट आई लैंड एट एन एवरेज जॉब, एटलीस्ट। मैं ये नहीं सोच के बैठ रहा कि अगर वहां पे हाईएस्ट 1 CR का पैकेज आ रहा है तो मैं 1 CR लूंगा। मेरे दिमाग में ये आ रखा है कि एटलीस्ट डिसेंटली आई कैन लैंड ऑन एवरेज, इतना तो लग ही जाएगा, इतना तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सोच के ना बहुत लोग आए हैं वहां पे, समझो इस चीज को, बहुत लोग सेम माइंडसेट के साथ पहुंचे वहां पे, इतना पैकेज तो ले ही लेंगे। रियलिटी डिफरेंट पता कहां हो जाती है? जहां वेरिएबल्स आने चालू होते हैं। और वो वेरिएबल्स कैसे हैं? लेट्स से देयर आर 100 पीपल, रेशो के हिसाब से चलते हैं। 25 से 30% लोग ऐसे होंगे जो एक कॉन्वर्जेशन होल्ड नहीं कर सकते, पहले बात करी थी अपन, जैसे जीडी में नहीं बोल पाते, कॉन्वर्जेशन होल्ड नहीं कर सकते, बातचीत करने का इतना स्किल नहीं है, दे आर नॉट क्विक ऑन देयर फीट्स, ठीक है? तो 25-30% वो लोग हो गए। 20% वो लोग हैं जिनका CV खाली पड़ा है, जिन्होंने सिर्फ पढ़ाई करी है जिंदगी में, ठीक है? अगले 20-25% का ब्रैकेट वो है लेट्स से जिनके पास वर्क एक्स है, ठीक है? दे आर गुड एट इट, दे हैव कॉन्फिडेंस, दे आर लाइक दे विल जस्ट ईट अप। उन्हें मालूम है कि अगर बाय चांस उनका नहीं जॉब लगा तो दे कैन ऑलवेज गो बैक टू देयर प्रीवियस कंपनी, बैकअप रेडी है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट 20-25% वो लोग हैं जो ये सोच रखे हैं उस पॉइंट पे, ठीक है, कि
दे आर गुड एट इट, लेट्स से फ्रेशर्स भी हैं, लेट्स से वर्कएक्स वाले भी हैं, दे आर गुड एट इट एंड दे आर टू गुड एट इट, ओवर कॉन्फिडेंस वाले भी हैं उसमें बीच में ब्रैकेट में, ठीक है। तो इनमें डाइसी रहता है, ये हर इंटरव्यू में जाएंगे, कुछ फकअप कर दिया वापस आ गए, वरना सिलेक्शन हो गई। जो 25% पहले था वर्कएक्स वाला, उनकी नौकरी तो लगी जानी ऑलमोस्ट। फिर अब तुम कंपैरिजन लो अपना इनके साथ। अगर लेट से तुम्हारा सीवी खाली और एक बंदा जिसका सीवी भरा है, लेट से तुम बोल नहीं पाते, एक बंदा वो है जिसका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल है बोलने के मामले में। अब इन 4-5 लोगों में कंपैरिजन हो रहा है जॉब के लिए, फाइटिंग। तो लेट्स से कि अब थिंक अबाउट इट, जॉब किसका लगेगा? बीच में एक 5-10% का लास्ट ब्रैकेट पता कौन सा? लकी पीपल, एक्सट्रीम लकी, जिनका लग इतना साथ देता है कि उन्होंने कुछ भी कह दिया, कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कर दिया उस दिन, एंड दे आर जस्ट इन। अगर आप उस लकी ब्रैकेट में आ गए तो आप इजीली इन चले जाओगे। अगर आप नहीं आए तो देन थिंग्स स्टार्ट एल्स वेयर। अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, उसने ज्यादा बोल दिया, जीडी में बोलने का मौका नहीं दिया, पूरा फिश मार्केट बन चुका था, उसको क्यों सिलेक्ट कर लिया? So you keep on constantly doing these things. Rather than doing that, work on yourself, and I'm assure you that you will be in a good place. I assure you that. So इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। Work on it. Keep grinding. Keep working hard. Keep doing the efforts.